यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद जय जय प्रभुपद 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 जय जय प्रभुपद जय श्री श्री राधा माधव की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। जय श्रीमद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सत्य श्री श्रीमद Divine Grace of Chरणarvind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, ISKCON founder Acharya, PPT founder Acharya, save the whole world Srila Prabhupada ki, Jai Vishnupada Paramhamsa Parivraj Acharya Ashtottara Sutta Shri Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada ki, Anant Koti Vaishnav Vrinda ki, Nama Acharya Srila Haridas Thakur ki, Granth Raj Srimad Bhagavatam ki, Anant Koti Vaishnav Vrinda ki. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. I can remove this one. इसको निकाल दीजिए. इसको निकाल दीजिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। Hare Krishna. Today we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto number 1, chapter number 13, text number 25. Tasyabidavadehoyam kripanasya jijivishoho paraityanicchato jirno jaraya vasasi iva tasyapi tavadehoyam kripanasya jijivishoho paraityanicchato jirno jaraya vasasi iva tasyapi tavadehoyam kripanasya jijivishoho paraityanicchato jirno jaraya vasasi iva. तस्याभिदवदेहोयं कृपणस्य जिजीविषोः परैत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससि इव। 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 और कोई? तस्याभिदवदेहोयं कृपणस्य जिजीविषोः परैत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससि इव। माताजी तस्याभिदवदेहोयं कृपणस्य जिजीविषोः परैत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससि इव। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामती वचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। तस्य उसका अपि के बावजूद तव आपका देह शरीर अयम यह
कृपणस्य कंजूस का, जिजीविषोः जीवन की इच्छा करने वाले का, परैति क्षीण हो जाएगा, अनिच्छतः न चाहते हुए भी, जीर्णः टूटा फूटा, जरया पुराने, वाससी वस्त्रों, इव सदृश। अनुवाद: मरने हेतु आपकी अनिच्छा होने तथा आत्मसम्मान की बलि देकर जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पर भी आपका यह कृपण शरीर निश्चय ही क्षीण होगा तथा पुराने वस्त्र की तरह नष्ट हो जाएगा। तात्पर्य: सो विल रीड इन इंग्लिश, हम इंग्लिश में तात्पर्य पढ़ेंगे और हिंदी में चर्चा करेंगे। Translation: despite your unwillingness to die and your desire to live, even at the cost of honor and prestige, your miserly body will certainly dwindle and deteriorate like an old garment. Purport: the words Kripanasya Jijivishoho are significant. There are two classes of men. One is called the Kripana and the other is called the Brahmana. The Kripana or the miserly man has no estimation of his material body, but the Brahmana has a true estimation of himself and the material body. The Kripana, having a wrong estimation of his material body, wants to enjoy sense gratification with his utmost strength, and even in old age he wants to become a young man by medical treatment or otherwise. Dhritarashtra is addressed herein as a Kripana because without any estimation of his material body, he wants to live at any cost. Vidura is trying to open his eyes to see that he cannot live more than his term and that he must prepare for death. Since death is inevitable, why should he accept such a humiliating position for living? It is better to take the right path even at the risk of death. Human life is meant for finishing all kinds of miseries of material existence, and life should be so regulated that one can achieve the desired goal. Dhritarashtra, due to his wrong conception of life, had already spoiled 80% of his achieved energy. So it behooved him to utilize the remaining days of his miserly life for the ultimate good. Such a life is called miserly because one cannot properly utilize the assets of the human life. Only by good luck does such a miserly man meet a self-realized soul like Vidura, and by his instruction get rid of the nescience of material existence. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manovishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamihyam Dadati Swapadandikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsya Shri Rupam Sagrajadam Sahagana Raghunatanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanutamsha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Taptakanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Krishabhanusate Devi Pranamami Haripriye
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तस्यापि तवे देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषुः परैत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससी इव। मरने हेतु आपकी अनिच्छा होने तथा आत्मसम्मान की बलि देकर जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पर भी आपका यह कृपण शरीर निश्चय ही क्षीण होगा तथा पुराने वस्त्र की तरह नष्ट हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है धृतराष्ट्र का द्वारा गृह त्याग। विदुर महाराज जो तीर्थ यात्रा करके आए हैं, जो हालांकि परिक्रमण में निकल गए हैं पर वापस एक ही कारण से आते हैं, एक ही उद्देश्य से आते हैं, वो है अपने भाई धृतराष्ट्र को जो मटेरियल एंटेंगलमेंट में फंसे हुए वहाँ से निकालना। जय श्री राधा माधव की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की। और उनके इंस्ट्रक्शंस एक्चुअली श्रील प्रभुपाद जी ने भागवतम के ऊपर जो लेक्चर्स दिए हैं उसका अगर हम एनालिसिस करें, आप वेदाबेस ऐप में जाइए, गीताबेस ऐप में, और देखिए एक अलग सेक्शन है जिसमें प्रभुपाद जी के लेक्चर्स हैं। तो प्रभुपाद जी के लेक्चर्स कैसे हैं? मेजॉरिटी ऑफ लेक्चर्स प्रभुपाद जी ने 1 से 7 स्कंद में दिए हैं। 8वें स्कंद में हार्डली कोई लेक्चर, 9वें स्कंद में हार्डली, मे बी 9वें स्कंद में कोई नहीं है शायद, 10वें स्कंद में 2 लेक्चर्स। 10वां स्कंद जो बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसमें प्रभुपाद जी ने कितने लेक्चर्स दिए हैं? 2 लेक्चर्स। मैं बताता हूँ आपको। ये एक बहुत सुंदर ऐप है, कुछ भक्तों ने बनाया है, प्रभुपाद आश्रय, तो उसमें ये सब इन्फॉर्मेशन है। फोर्थ कैंडो मात्र 1 लेक्चर है प्रभुपाद जी का। 5th कैंडो कई सारे हैं, मटेरियल क्रिएशन, फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट। 6th कैंडो में कई सारे, 7th कैंडो में कई सारे लेक्चर्स हैं। 8th कैंडो में कोई लेक्चर नहीं है, 9th कैंडो में लेक्चर नहीं है प्रभुपाद जी का। 10th कैंडो में 4 लेक्चर्स है, सॉरी 11th कैंडो में 2 लेक्चर्स हैं, और 12th कैंडो में 1 लेक्चर है। और प्रभुपाद जी के हम लेक्चर सुनेंगे तो रिवोल्यूशनरी है, एक स्टेटमेंट प्रभुपाद जी का। हाँ, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनते हैं, लेक्चर के अंत में जब प्रभुपाद जी बोलते हैं थैंक यू वेरी मच, उसके बाद प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स कितने जोर से बोलते हैं जय श्रील प्रभुपाद। सुना है आपने? क्योंकि प्रभुपाद जी के लेक्चर से 20-25 मिनट के, आधे घंटे, कभी कभी एक्सेप्शनली प्रभुपाद जी ने 1 घंटे से ऊपर लेक्चर दिया है, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, हाफ एन आवर, 40 मिनट्स, बट उसमें प्रभुपाद जी इतना स्ट्रॉन्ग रिवोल्यूशनरी कृष्ण कॉन्शियस मैसेज देते थे। तो इसी तरह की अर्जेंसी यहाँ विदुर महाराज एक्सप्रेस कर रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं किसको? धृतराष्ट्र को, कि मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज, बहुत हो गया, अभी निकलो यहाँ से, टाइम हो गया है रिटायरमेंट का। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि कभी कभी गवर्नमेंट ऑफिसेस, कई गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता है, पर जब समय आता है, फॉर एग्जांपल 5 बज गए, 9 to 5 या 9 to 6 कितना बजे होता है गवर्नमेंट ऑफिस में? कितने बजे तक ड्यूटी होती है? 9 to 6, 6 बजे तक। तो 6 बजे जब टाइम हो जाता है तो भले ही कितना भी काम बाकी पड़ा हो, ऑफिस लॉक करके निकल जाते हैं वो लोग। तो प्रभुपाद जी ऑफकोर्स करंट गवर्नमेंट में ये सब है, पहले निकल जाते थे, 6 बजे से पहले निकल जाते थे। बट प्रभुपाद जी इसी संबंध में कहते हैं कि इसी तरह जैसे कि ऑफिस का टाइम हो गया, मतलब चेकआउट, निकलो, कितना भी काम बड़ा हो बाकी छोड़ के निकलो। इसी तरह हमारे जीवन में भी जब एक समय आता है रिटायरमेंट का कि 50 वर्ष हो गए, इसके बाद कितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी हो, कितना भी काम पड़ा हो, सब छोड़ के क्विट, प्रिपेयर फॉर डेथ।
प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं इसके ऊपर, और यही अर्जेंसी प्रहलाद महाराज ने भी एक्सप्रेस की है। प्रहलाद महाराज टीचिंग टू हिज क्लासमेट्स, क्लास फ्रेंड्स, एक जगह प्रभुपाद जी कहते हैं कि दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ अ प्रीचर। वो अद्वैत आचार्य का अपीयरेंस डे है, उसके ऊपर प्रभुपाद जी ने लेक्चर दिया है, 24 मिनट का लेक्चर है मात्र, और बहुत रिवोल्यूशनरी, बहुत पावरफुल है, सबको सुनना चाहिए। तो प्रभुपाद जी वहाँ प्रणाम मंत्र जो है अद्वैत आचार्य का, अद्वैता हरिण अद्वैता आचार्य भक्ति समसनाथ, आचार्य भक्ति समसनाथ, आचार्य का कार्य क्या है कि भक्ति का प्रचार करना। तो वहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रचार करना। वहाँ अगेन प्रभुपाद जी अर्जेंसी बताते हैं कितना अर्जेंट है भक्ति करना, और भक्ति का प्रचार करना कितना अर्जेंट है, भक्ति सीरियसली भक्ति करना कितना अर्जेंट है। और एक लेक्चर में प्रभुपाद जी प्रहलाद महाराज को बताते हैं, प्रहलाद ठाकुर, कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रहलाद महाराज भगवान की भक्ति का प्रचार करते, प्रहलाद ठाकुर है। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान यह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। कहता है कि 5 वर्ष की आयु से हमें भक्ति का प्रारंभ करना चाहिए। ऑलरेडी हम 20, 25, 30 साल पहुंच गए, ऑलरेडी इतने लेट हैं हम। तो कोई कहता है कि प्रभु जी क्यों करना चाहिए इतना, तो प्रभुपाद जी बताते हैं वहाँ कि लेक्चर में, क्योंकि मनुष्य जीवन कौमार आचरित प्राज्ञो 5 वर्ष की आयु से प्रारंभ क्यों करना है, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ मिलता है। कौमार आचरित प्राज्ञो होता क्या है कि जैसे ही हम बड़े होते हैं तो बॉडीली आइडेंटिफिकेशन बढ़ती जाती है हमारी। जैसे हम छोटा होते हैं, बच्चे को कुछ पता नहीं कि मेरा नाम क्या है, वो भी उसको फॉल्स आइडेंटिफिकेशन बताया जाता है कि तुम्हारा नाम ये है। उनको मम्मी मम्मी बोलो, उनको पापा पापा बोलो, उनको चाचा बोलो, सिखाया जाता है, फॉल्स आइडेंटिटी दी जाती है कि यू आर सन ऑफ समबडी, यू आर ब्रदर ऑफ समबडी, यू आर कजिन ऑफ समबडी। उनको सिखाया जाता है फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। जितना बच्चा छोटा होता है उसकी फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, बॉडी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। जैसे बड़ा होता है तो आइडेंटिफिकेशन बढ़ जाती है यहाँ, फिर किसी का वो स्टूडेंट बन जाता है, कोई टीचर बनते हैं, फिर कोई बॉस आता है उसके जीवन में, तो फॉल्स आइडेंटिटी बढ़ती जाती है, वो कम तो नहीं होती। और जैसे हमारी फॉल्स आइडेंटिटी बढ़ती है हम और एंटेंगल हो जाते हैं। फिर आई कार्ड पहन के घूमते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट, आई एम सर्वेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, आई बिलोंग टू माइक्रोसॉफ्ट। एटलीस्ट 10 घंटा तो मैंने अपने आप को माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया है, डेली 10 घंटा अपने आप को माइक्रोसॉफ्ट के हवाले कर दिया है। सो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन बढ़ जाता है। पर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कौमार आचरित प्राज्ञो, इसीलिए बचपन में बहुत सरल होता है। देखिए छोटे बच्चे होते हैं, हम अत्तापुर रथ यात्रा प्रोग्राम में थे, प्रसाद वितरण के हॉल में था मैं, तो वहाँ एक छोटा बच्चा आया, 2-3 बच्चे आए, बोले कि प्रभु जी पानी का बोतल चाहिए। मैंने बोला हरे कृष्ण बोलो, बोला हरे कृष्ण मैंने तुरंत बोतल दे दिया। अगर आप कोई 16-18 वर्ष के या 20 वर्ष के स्टूडेंट को ऐसे बोलो कि बोलो हरे कृष्ण बोलो, तो उल्टा जवाब देगा क्यों बोलूँ, तुम्हारे बाप का नौकर हो गया फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ शरीर हूँ और मेरे पास अचीवमेंट्स है, इससे फॉल्स आइडेंटिटी बढ़ जाती है। और छोटा बच्चा होता है, हम देखते हैं डिवोटीज बच्चे को लेके आते हैं अपने पुत्र को, पिताजी प्रणाम करते हैं तो बच्चा भी प्रणाम करता है देख के। इनफैक्ट कभी कभी हम देखते हैं कि पिताजी के ऊपर लेट के प्रणाम करता है बच्चा पीठ के ऊपर। कभी नहीं देखते हैं कि अगर प्रणाम नहीं कर रहा है बच्चा तो पिताजी ज़बरदस्ती उसको सुला देते हैं, तो कुछ प्रोटेस्ट नहीं करता, कोई ईगो नहीं है, कोई फॉल्स आइडेंटिटी नहीं है, जो भी कहा बच्चा करता है। संस्कार बहुत ईजी होते हैं, पर जैसे हम बड़े होते हैं तो ये सब बहुत टफ हो जाता है और गंदे संस्कार इंप्रेशंस आते हैं हमारे मन में, तो इससे भक्ति करना टफ होता है। इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कौमार आचरित प्राज्ञो 5 वर्ष की आयु से हमें भक्ति करना प्रारंभ करना चाहिए तो ऑलरेडी हम लेट हैं, पर प्रभुपाद जी कहते हैं बेटर लेट देन नेवर। कभी भी बोलते हैं ना कि जब भी उठे तब से सवेरा, जब जागे तब से सवेरा। तो जब जाग गए हमारी आंखें खुल गई है, आधी खुल गई एटलीस्ट, कि भक्ति करना जीवन का लक्ष्य है, तब से हमें भक्ति बहुत सीरियस तरीके से करनी चाहिए। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान यह, कौन सा धर्म करना चाहिए। बहुत सारे जो विधि है वैदिक धर्म, वो तो संभव नहीं है सबके लिए अभी, पर पांचरात्र की विधि वो भी संभव नहीं है, ठीक है। भागवत धर्म श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, तो ये जो है वो कोई भी कर सकता है, एक छोटा बच्चा भी कर सकता है। भगवान का श्रवण करना, भगवान के विषय में श्रवण करना, कीर्तन करना एक बच्चा भी कर सकता है। तो ये भगवत धर्म का अभ्यास करना चाहिए। क्यों करना चाहिए कोई बोलेगा कि आराम से पूरा जीवन पड़ा है, अभी आराम से 60 वर्ष की आयु में करेंगे, 70 वर्ष की आयु में करेंगे। लोग काफ़ी बार कहते हैं कि अभी इतनी जल्दी क्या है भक्ति करने की, 60 वर्ष की आयु में हम भक्ति करेंगे। 60 वर्ष के लोग प्राय कहते हैं, जो बूढ़े होते हैं वो कहते हैं कि भक्ति को आराम से करने की प्रक्रिया है, अभी इतनी जल्दी क्या है।
तो हम जनरली उनको पूछ सकते हैं कि आप कर रहे हो क्या इस आयु में भक्ति? नहीं कर पाते लोग। आंखें दर्द करती हैं, देख नहीं पाते अच्छे से, चश्मा कहाँ गया ढूंढना ये भी नहीं मिलता, पैर दर्द करते हैं, दांत गिर जाते हैं, जीवा पर कोई टेस्ट नहीं आता, बोलना ठिकाने से नहीं होता, सांस लेना ठिकाने से नहीं होता। क्या इस अवस्था में हम भक्ति कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो कोई बोलता है कि 60 वर्ष की आयु में भक्ति करेंगे आराम से, इतनी जल्दी क्या है भाई? बट नहीं, जो मनुष्य जीवन मिला है कभी भी समाप्त हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, कभी भी, एनी टाइम। तो कोई डर जाएगा पर कभी भी समाप्त हो सकता है, मैं डर डर के भक्ति करूं? नहीं। जितना भी समय है, भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि जितना भी हम थोड़ा सा भी कार्य करेंगे, नेहा विक्रमणा शोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, छोटा सा भी भक्ति में समय लगाएंगे तो उसका फल हमें परमानेंट मिलेगा। और बहुत शक्तिशाली है भक्ति, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि भक्ति में कितनी शक्ति है। एक बार प्रभुपाद जी कहते हैं कि न्यू पर्सन मे कम। एक बार प्रभुपाद जी एक मॉर्निंग वॉक में गए थे जुहू में, और जुहू में था, कहाँ था, जुहू में प्रॉब्ली। तो मॉर्निंग वॉक के समय कुछ व्यक्ति आए और ग्रुप में, और वृद्ध व्यक्ति थे कुछ, वो प्रणाम करते प्रभुपाद जी को कहे कि हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी ने बोल के रुक के बोला हरे कृष्णा, और फिर अपने शिष्यों से कहा कि जस्ट सी ही हैज़ रिस्पेक्ट फॉर अ सेंटली पर्सन, जस्ट फॉर दिस ही डज नॉट नो वैदिक लिटरेचर, उसको बहुत वैदिक ज्ञान नहीं है, पर मात्र संत के लिए उसको कोई सम्मान है मन में, इसके लिए ये भगवान के पास बहुत जल्दी जाएगा। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि मन मना भव मत भक्तु, हम मंदिर खोल रहे हैं, क्यों खोल रहे हैं? जिससे कि लोग आके और भगवान को प्रणाम करें। हालांकि वो पढ़े लिखे नहीं हो, उनको बहुत सारा ज्ञान नहीं है, पर मात्र आने से डेली अगर भगवान को प्रणाम भी करें, प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम, भगवान को प्रणाम करने से भी सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। इतनी शक्ति है भक्ति में, मात्र प्रणाम करने से। तो जब भी हमें अवसर मिलता है भगवान को प्रणाम करना चाहिए। बहुत सरल है प्रणाम करना, कुछ कठिन नहीं, इनफैक्ट आनंद आएगा। इतने 4 बजे उठे हैं, इतनी मेहनत करने के बाद प्रणाम करना होता है, दंडवत प्रणाम करना अच्छा लगता है। तो भगवान को प्रणाम करना चाहिए जितना भी अवसर मिले। भक्ति में बहुत शक्ति है। तो दुर्लभम मानुषो देहु, सबको नहीं मिलता मनुष्य जन्म, बहुत विरलो व्यक्ति को मिलता है। बुद्धिज्म में एक ग्रंथ में कहा गया है, हालांकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि बुद्ध लोग वेदों को नहीं मानते इसलिए वो नास्तिक है, पर एक एग्जाम्पल आता है जहाँ लिखा गया, बताया गया है कि एक व्यक्ति को, एक आत्मा को मनुष्य जीवन मिलना कितना दुर्लभ है। जैसे कि कोई कछुआ हो, पूरे वास्ट विशाल समुद्र में कछुआ तैरता है, एक कछुआ जो अंधा हो, कितनी पॉसिबिलिटी, कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी संभावना है कि एक अंधा कछुआ पूरे विशाल समुद्र में जो तैर रहा है, और कछुआ बहुत समय जीता है, 300-400 साल जीता है, तो वो अंधा कछुआ पूरे बड़े विशाल समुद्र में, समुद्र की सतह पर आए, उसको कुछ दिख नहीं रहा है, पर सतह पर आए और वहाँ एक लकड़ी का टुकड़ा हो या एक रिंग हो, उसके अंदर अपना सिर डालें और वहाँ से बाहर किस वायु से सांस भरें। कितनी संभावना है, कितनी प्रोबेबिलिटी है? हार्डली नो प्रोबेबिलिटी। और कहते हैं कि कछुए बहुत कम आते हैं समुद्र की सतह के ऊपर, जो समुद्र में होते हैं। वो ऐसे अंधा जो कछुआ हो, इतने समुद्र में, विशाल समुद्र में ऊपर आए और सतह से एक लकड़ी की स्पेसिफिक रिंग तैर रही हो, उसी के अंदर से अपना सिर डाल के फिर सांस ले, बहुत कम संभावना है। 1 in 100 years, 100 साल में एक बार ऐसा होता है। इस तरह संभावना है कि हमें एक जीव को एक मनुष्य शरीर प्राप्त हो, तो ये हमें प्राप्त हुआ है अभी। ताकि कोई लॉटरी हो, फॉर एग्जाम्पल, कि भारत की जनसंख्या कितनी, 140 करोड़ है अभी, 140 करोड़ों में से एक व्यक्ति को कुछ विशेष पारितोषिक, कुछ अवार्ड मिलेगा, या प्राइम मिनिस्टर बना दिया, एक व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और तो नहीं बनते। कितना, ऑफकोर्स ये यहाँ तो बहुत कुछ मैन्यूअर भी करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है, पर क्या अगर लॉटरी लगाए 140 नाम है, उसमें से एक पिक किया जाए, तो क्या संभावना है कि कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनेगा? बहुत कम। इसी तरह हमें अभी मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, तो इसलिए हमें बहुत उसको वैल्यू करना चाहिए। और मानुषम, हाँ, वो और एक श्लोक है, दुर्लभम मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये तत् वैकुंठ प्रिय दर्शनम। और उसमें भी मनुष्य शरीर प्राप्त हो, उसके अंदर भी अगर किसी को भगवान के भक्त का संग मिला, दर्शन हुआ, ये तो और अति दुर्लभ है, क्योंकि भगवान के भक्त भी बहुत रेयर होते हैं, शुद्ध भक्त। तो ये बहुत विशेष अवसर है, हमें प्राप्त हुआ है।
तो कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान यहाँ दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। पर जो भी हम कार्य करते हैं उसका परमानेंट रिजल्ट मिलता है। तो मनुष्य जीवन है पर वो बहुत अर्थदम और मीनिंगफुल, प्रभुपाद जी लिखते हैं मीनिंगफुल है, तो हमें इसका उपयोग करना चाहिए। पर होता क्या है प्रायः, क्योंकि हम इस एजुकेशन सिस्टम में फंसते हैं, तो एजुकेशन सिस्टम में हमें सिखाया क्या जाता है, द कंपोजिशन ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड देन द सेल्स वो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बैठा हुआ है, उसके अंदर न्यूक्लियस बैठा हुआ है, ये सब हमें सिखाया जाता है, करेक्ट। प्रभुपाद जी बताते हैं कि बहुत स्ट्रांगली कि इस शरीर का आप इतना डिटेल स्टडी कर रहे हो, पर शरीर का उपयोग जिस उपयोग के लिए, जिस कार्य के लिए, उद्देश्य के लिए दिया गया है, उसके लिए उपयोग नहीं करो तो क्या मतलब है, क्या अर्थ है, इट्स यूजलेस। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति कार खरीदता है और पूरा दिन, पूरे महीनों सालों निकाल देता है कार को स्टडी करने के लिए, उसका क्लच सिस्टम कैसा है, ब्रेक सिस्टम कैसा है, एक्सीलरेटर कैसा है, MPFI है, मल्टीपॉइल फ्यूल इंजेक्शन है, या फिर उसका हॉर्न कैसे काम करता है, उसमें DVD प्लेयर है वो कैसे काम करता है, सेंसर भरा है उसके अंदर, पीछे रियर कैमरा है, ये बस मैकेनिज्म समझने में समय लगा देता है व्यक्ति, महीनों और सालों लगाता है। पर कार क्यों दी गई है उसको, डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। अगर उसी को, कार को डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए उपयोग नहीं करता तो ये मूर्खता है। क्या मतलब है इतने साल कार की स्टडी करने का, मूर्खता है, वेस्ट ऑफ टाइम। तो सिमिलरली जो लोग होते हैं उसको बस पैसा दो, काम खत्म, कार मिल गई, उसको यूज़ करो। तो इसी तरह प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य शरीर में जो प्राप्त हुआ है बहुत महत्वपूर्ण है। पर आजकल वैज्ञानिक किसके लिए उपयोग करते हैं इसको, स्टडी करते हैं कि हमारा जॉइंट्स कैसे काम करते हैं, तो मन में क्या क्या है, ब्रेन में क्या क्या है, ENT अच्छी बात है, उसको सुधार के फिर हम अच्छे से भक्ति करें, उसके लिए स्टडी करें तो अच्छा है। पर हम लग जाते हैं इसी में कि सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा है, और जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य शरीर दिया गया है उसको हम उपयोग नहीं करते। भगवत धाम जाने के लिए, ये हमारा डेस्टिनेशन है, उसके लिए अगर उपयोग नहीं करते तो मूर्खता है हमारी, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, पूरा जीवन गंवा दिया। बस हमें समझना है कि ये जो मनुष्य शरीर है बहुत बहुत दुर्लभता से मिलता है, सबको नहीं मिलता, और जिस पर्पस के लिए दिया गया है उसमें हमें उपयोग करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर हो यही रहा है आजकल कि बस एजुकेशन सिस्टम में हमें सिखाया जाता है कि बस खाओ पियो ऐश करो, और ऊपर से मीडिया और कैनवासिंग करता है, सोशल मीडिया में बताया जाता है कि आप ये करो ये करो, आपके पास अगर ये नहीं है तो फिर आपका जीवन अधूरा है। आपके पास iPhone अभी 18 चल रहा है, कौन सा चल रहा है, 17-18 जो भी है, तो 17, तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आपका जीवन यूजलेस है, ये सिखाया जाता है मीडिया में। इतना कंपैरिजन करते हैं लोग, और इसके नाम पर, क्योंकि लोगों की जो एनवी मेंटालिटी है, जो ग्रीड है, उसका लाभ उठाते हैं लोग, पैसा कमाते हैं। मुझे याद, मैं जब छोटा था तो टीवी में एक एडवर्टाइजमेंट आती थी, क्रिकेट मैच हम देखते थे तो 2 ओवर के बीच एक एडवर्टाइजमेंट आती है, तो एडवर्टाइजमेंट एक याद है मुझे, एक कलर फ़ोन तभी कभी मार्केट में आए थे, कलर फ़ोन मतलब इवन बटन फ़ोन भी ब्लैक एंड वाइट थे, नोकिया 1100 था, और उसके बाद नोकिया एक कलर वाला फ़ोन आया था, बटन वाला 8310 आई थिंक, नोकिया 8310 कलर वाला था, बटन वाला था, पर कलर फ़ोन था, कलर स्क्रीन। तो ऐड ऐसी थी कि एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वो कहीं बात कर रहे होते हैं, और लड़के के जेब में फ़ोन है, उसमें फ़ोन आता है, रिंग बजती है, पर वो यहाँ फ़ोन बाहर निकाल के उठाना नहीं चाहता क्योंकि उसको शर्म आती है कि ब्लैक एंड वाइट फ़ोन है मेरे पास तो दूर जाएगा दौड़ के और फिर फ़ोन उठाएगा। कंपैरिजन, सोशल स्टेटस इशू। पर ये सब वस्तुएं इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, चाहे हम इतनी भी अच्छी इमेज बना लें, अच्छी ब्रांड की टी-शर्ट, फ़ोन ले लें, या फिर अच्छा सा घर बना लें, पर अगर उस वस्तुओं का उपयोग जिस उद्देश्य के लिए दिया गया है उसके लिए न करें तो सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। और फंसे हुए हैं लोग, फंसे हुए हैं, और इसी चक्कर में इतने अधिक फंस जाते हैं एंटेंगलमेंट में। जितना अधिक एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करते हैं हम मटेरियल नेचर को, उतना अधिक हम उसमें उलझ जाते हैं, उससे फंस जाते हैं। कभी होता है कि धागा, कभी हम जब पतंग उड़ाते थे तो पतंग उड़ाते समय जब छोटे थे तब बड़ा स्पूल तो नहीं मिलता था हमें, थोड़ा बहुत धागा होता उससे मैनेज करते थे। तो जब धागा कभी कभी उलझ जाता है उसको सुलझाने में कितना समय लगता है, जितना कभी कभी ऐसा होता है कि उसको सुलझाने का प्रयत्न करो अधिक उलझ जाता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में होता है कि जीवन में हम बहुत सारी वस्तुओं को एंजॉय करने का प्रयत्न करते हैं, उसमें फंस जाता है, फिर बाहर नहीं आ पाते। मोबाइल आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मोबाइल, लोनलीनेस। लोग इतने फंस चुके हैं, बाहर कैसे आए हैं। तो मटेरियल नेचर को हम जितना एंजॉय करने का प्रयत्न करते हैं उतना उसमें अधिक फंस जाता है, एंटेंगलमेंट, और उससे बाहर नहीं आ पाते। और उससे जितना अधिक बाहर आने का प्रयत्न करते हैं उतना अधिक पेन होता है, क्योंकि अटैचमेंट हो गया है।
उतना अधिक पेन होता है। जैसे कि हमारा ये प्रहलाद देवी लेक है, वहाँ हम देखते हैं कई लोग मछुआरे होते हैं, वो फिशिंग हुक डाल के मछली पकड़ने का प्रयत्न करते हैं। तो वो हुक में जब दिखता है कि कुछ मांस का टुकड़ा है या फिर कुछ आटा फंसाया हुआ है, तो जब मछली दूर से देखती है तो लगता है कि हाँ बहुत अच्छा फीस आज पकवान मिलने वाला है। तो मछली जाके तुरंत एकदम तत्परता से उसको खाने का प्रयत्न करती है, और जैसे ही खाने का प्रयत्न करती है क्या होता है, फंस जाती है मछली। और वो जो हुक होता है ऐसे होता है एरो शेप, तो उसमें फंस जाता है। बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। और जितनी मछली अधिक प्रयत्न करती है उससे हुक से बाहर निकलने का, जितना अधिक प्रयत्न किया बाहर निकलने के लिए, उतना अधिक पेन होगा, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसा है एरो शेप। जितना अधिक बाहर निकलने का प्रयत्न किया उतना अधिक पीड़ा होगी। मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट ऐसा ही है। दूर से लगता है कि हाँ बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा, चलो एंजॉय करने का ट्राई करते हैं। पर जैसे ही हम जाते हैं वहाँ फिर फंस जाते हैं, और फंसने के बाद बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। जैसे अधिक निकलने का प्रयत्न करते हैं उतनी अधिक पीड़ा होती है। और हर प्रोग्राम के बाद हमारे पास कोई ना कोई स्टूडेंट्स आते हैं, प्रभु जी इसमें फंस चुका हूँ, मैं क्या करूँ, प्रभु जी इसमें फंस चुका हूँ, क्या करूँ। एक स्टूडेंट आया था हमारे पास रिसेंटली, प्रोग्राम में तो बहुत अच्छा था, फिर क्लास के बाद आया, प्रभु जी कुछ पर्सनली डिस्कस करना है। बोला क्या हुआ। हम बैठे, वो बोला प्रभु जी मैं एक गर्लफ्रेंड के साथ अफेयर्स में था, और 2 साल से रिलेशन चला, लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, और अचानक से गर्लफ्रेंड ने सुसाइड कर लिया। एंड शी यूज्ड टू टेल मी दैट सोच रही हूँ सुसाइड कर लूँ मैं, बोल के सुसाइड किया। और फिर बोला कि प्रभु जी दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बट क्या हुआ कि जब मैं घर पे गया, उसने फ़ोन नहीं उठाया, आई वेंट, देखा कि बॉडी इज़ हैंगिंग ऑन द फैन। मैंने पर्सनली वो बॉडी मेरे कंधे पे लेके गया हॉस्पिटल, वेयर शी वाज डिक्लेयर्ड डेड। और बोला प्रभु जी सिंस लास्ट 3 मंथ्स मैं सो नहीं पाया हूँ रात को, 3 महीने से मैं सोया नहीं हूँ रात को। ऑल दिस इमेजेस, इंप्रेशंस कीप हॉन्टिंग मी, हाउ आई टुक द बॉडी, हाउ आई टुक इट टू हॉस्पिटल। एवरी सेकेंड मुझे मेरे दिमाग में आता है, रिकैप होता है, सो नहीं पा रहा हूँ मैं। जस्ट इमेजिन कैसी परिस्थितियाँ लोगों की। फिर मैंने बोला कि ठीक है, सोने से पहले आधा घंटा कृष्ण बुक पढ़ो, आधा घंटा हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, और अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के हरे कृष्ण महामंत्र जप करो। नेक्स्ट डे ही मेट मी एंड ही सेड प्रभु जी आफ्टर 3 months आई स्लेप्ट। मुझे नींद आई 3 महीने के बाद। तो इतनी शक्ति है भक्ति में, और लोग इतने परेशान हैं बाहर, इतने परेशान हैं, फंस जाते हैं लोग। लगता है कि आनंद आएगा, पर कुछ आनंद नहीं है। देखिए बाहर क्या हो रहा है आज समाज में, लोग सोचते हैं कि बहुत आनंद आएगा, हम विवाह कर लेंगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चक्कर, उसमें फंस गए हैं लोग। पर उसे निकलना जितना अधिक प्रयत्न करते हैं उतना अधिक फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं। तो हमें एटलीस्ट अभी से अलार्म मिल गया है, पहले से पता चल गया कि शास्त्रों का ज्ञान प्रभुपाद जी ने बताया फॉर्चुनेटली कि ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है भगवान के धाम जाना। बिकॉज नो मास्टर कैन सेटिस्फाई अस, नो बडी इन द वर्ल्ड कैन सेटिस्फाई। कोई भी स्वामी हमें संतुष्ट नहीं कर सकता। भगवान एकमात्र ऐसे स्वामी है जो हमें संतुष्ट कर सकते हैं। कभी कभी हम स्टूडेंट यूथ को पूछते हैं क्या कर रहे हो आजकल, मतलब प्रभु जी मैं इस कंपनी के लिए जॉब कर रहा था 3 साल, नाउ आई एम लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे बोलते हैं बेटर अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा मतलब ये है कि पहले वाला जो बॉस था वो तुमको सेटिस्फाई नहीं कर पाया और तुम उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, अब दूसरे स्वामी दूसरे मास्टर की खोज में हो। बट नो मास्टर इन द वर्ल्ड कैन सेटिस्फाई अस। भगवान मात्र है, भगवान श्री कृष्ण जो हमारे ऐसे स्वामी हैं जो हमें संतुष्ट कर सकते हैं। तो हमें समझना है कि ये जीवन का लक्ष्य है। पर जैसे यहाँ बताया है परपट में कि जो व्यक्ति ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, मनुष्य जीवन के एस्टिमेशन को नहीं समझ पाता, वो जीवन को एंजॉय करने का प्रयत्न करता है और सोचता है कि मैं कैसे कैसे, वृद्धावस्था में भी व्यक्ति सोचता है कि मैं कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट करके युवा हो जाऊं और एंजॉय करूं लाइफ में, पर कोई कर नहीं पाता। अभी एक कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति आया था, क्या नाम था उसका, न्यूज़ था कि वो व्यक्ति एंटी एजिंग ट्राई कर रहा था। एंटी एजिंग मतलब वृद्ध न हो, उसके लिए कुछ दवाई ले रहा था। डेली 100 से अधिक वो दवाई खाता था, सप्लीमेंट्स अलग अलग जितने भी पॉसिबल 100 से अधिक पैरामीटर्स वो मेजर करता था। पैरामीटर्स मतलब ब्लड प्रेशर कितना है और पल्स रेट कितना है और क्या क्या पैरामीटर्स मेडिकली होंगे, स्किन के रिलेटेड, फिर ब्रीदिंग के रिलेटेड, हार्ट के रिलेटेड, 100 से अधिक पैरामीटर्स डेली नापता था वो और रिकॉर्ड रखता था डेली का। पर उसको एक इनक्योरेबल डिजीज़ हो गया है, एक रोग हो गया है जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसका कोई निवारण नहीं है।
सेल्फ इम्यून क्या था, ऑटो इम्यून डिजीज, उसका स्वयं का पेट अंदर से खा रहा है, पेट अंदर अपने आप को खा रहा है, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं, जिसका कोई निवारण नहीं है। तो व्यक्ति कितना भी ट्राई कर ले कि मैं जवान हो जाऊंगा, युवा हो गया, फिर और एंजॉय करूंगा, संभव नहीं है। मृत्यु सबको आनी है, कोई नहीं रोक सकता। कितने भी प्लान करके बैठा हो व्यक्ति कि ये करूंगा, इतने इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, जब मृत्यु आएगी, सॉरी सर, जीरो, क्विट। आपने पुरानी मूवीज देखी है? पुरानी मूवीज में अगर आपने देखा होगा 90s में कैसे होता है कि हीरो और उसकी माँ एक रेंटेड प्रॉपर्टी में घर में रहते हैं, और घर का मालिक आता है और उनको निकालता है ज़बरदस्ती बाहर, घर से बाहर निकालता है, और फिर घर में अंदर जाके बर्तन फेंकना चालू करता है, और वो रोते हैं कि नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ मत करो, पर फिर ये किसी का सुनता नहीं है, उसे बर्तन फेंकता है, फिर चेयर फेंकता है बाहर। देखा आपने? सुना होगा, मैं इमेजिन कर सकते हैं आप। वो व्यक्ति मना कर रहा है, नहीं प्लीज़ प्लीज़ मुझे रहने दो, प्लीज़ मुझे रहने दो, पर ये ओनर किसी का सुनता नहीं है, चेयर फेंकता है, टेबल फेंकता है, सब पकड़ के बाहर फेंकता है, बर्तन फेंकता है। क्रूएल्टी, क्रूरता से। इसी तरह हमारे साथ होता है। जब मृत्यु का समय आता है, मृत्यु के समय जीव कहता है कि नहीं प्लीज़ प्लीज़ मुझे रहने दो इस शरीर में, कुछ समय के लिए रहने दो, पर कौन होता है हमें बाहर निकालने वाले? हम इतने बड़े राक्षस नहीं करिए, यमराज पर्सनली आएंगे। यमदूत होता है हमारे लिए। यमराज तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो यमदूत जब आते हैं, जीव को बाहर निकालते हैं, चलो निकलो, और जीव कहता है कि नहीं प्लीज़ छोड़ दो, पर उसको ज़बरदस्ती निकाल दिया जाता है। इसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं कि एंजॉय करना है, ये प्लान करना है, वो प्लान करना है, यहाँ घर बनाना है, इतना इन्वेस्टमेंट करना है, ये कंपनी खोलनी है, अभी तो बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे के बच्चे को पढ़ाना है, पर फिनिश, कोई किसी को बख्शा नहीं जाता। तो इसीलिए जब राइट टाइम आता है, कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, उसको छोड़ के जीवन का लक्ष्य जो है उसको प्राप्त करने में प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, और द अर्लियर इट इज़ बेटर। जितना हम जल्दी कर सकें उतना अच्छा है, क्योंकि जैसे ही हम आगे पहुंचेंगे, वृद्धावस्था में पहुंचेंगे, मन की ग्रंथि इतनी बंध गई होती है कि उसके बाद कॉन्सेप्शन चेंज नहीं होते। अब वृद्ध व्यक्तियों को आप कितना भी समझाओ, ऐसे होता है हाँ, पर करेगा वही जो उसके मन में है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बन चुका है, गांठ बंध चुकी है, उसको नहीं छोड़ सकते हम। तो अर्जुन से इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अभी करना चाहिए, तुरंत, एज सुन एज पॉसिबल। तो वो सोचेगा पर मैं भगवान की भक्ति करूँ, भगवान को सरेंडर करूँ, तो खाने पीने का क्या? तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयु व्यय परम न तथा विन्दते क्षमम मुकुंद चरणाम्बुजम। ऐसे कोई प्रयत्न करना ही नहीं चाहिए। न तथा विन्दते क्षमम मुकुंद चरणाम्बुजम, जो भगवान मुकुंद की चरण की ओर हमें न ले जाए, ऐसे प्रयत्न नहीं करने चाहिए, टाइम वेस्ट है। तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयु व्यय परम, इससे आयु व्यय होती है, समाप्त होती है। और अगर कोई कार्य में भगवान के चरण कमल की ओर नहीं ले जाता तो उसको मैं नहीं करना चाहिए, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी। और टाइम ऐसे निकल जाता है, पता नहीं चलता। हमें लगता है तो अभी तो कॉलेज में था। अभी इतने साल निकल गए, 12-13 साल निकल गए, पता भी नहीं चला। आपसे अभी तो हम स्कूल में एडमिशन हुआ था, करेक्ट? इतने 10-12 साल निकल गए, और हम सोचते हैं कि लॉकडाउन, अच्छा तो अभी तो लॉकडाउन गया, लॉकडाउन को 5 साल निकल गए हैं। तो हम सोचते हैं कि ये पर कुछ परमानेंट नहीं है, फटाफट टाइम निकलता है। जब हम कॉलेज प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो मुझे लगता है कि अभी तो मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ हूँ, पर इतने साल निकल गए फटाफट। हमें लगता है कि मैं भी अभी भी वैसा ही हूँ, बट नहीं, टाइम फटाफट निकलता है, और कैसे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, तुरंत मृत्यु आएगी एंड फिनिश्ड। तो हमें एकदम ध्यान से, तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए। तो कोई कहेगा प्रभु जी पर खाने पीने का क्या होता, कुछ करना पड़ेगा? नहीं, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जैसे आनंद जैसे प्रॉब्लम्स और दुख हमारे जीवन में ऑटोमेटिक आता है, वैसे खुशियां भी, आनंद भी ऑटोमेटिक आएगा, कोई अलग से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। एक पर्पट में प्रभुपाद जी लिखते हैं, रघुगण सेक्शन में, किंग ऋषभदेव, टीचिंग्स ऑफ ऋषभदेव के सेक्शन में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वन शुड नॉट वर्क इवन फॉर मेंटेनिंग बॉडी एंड सोल टुगेदर। भौतिक शरीर और आत्मा को भी साथ में रखने के लिए किसी को मेहनत नहीं करनी चाहिए, कार्य नहीं करना चाहिए, ऑटोमेटिक आएगा। अजागर वृत्ति, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। अजागर वृत्ति मतलब देखा आपने अजगर वृत्ति? अजगर को क्या करता है? बस बैठे रहता है, पड़े रहता है, लेटे रहेगा, कुछ भी आसपास आएगा उसको निगल लेगा, पूरे के पूरे मनुष्य को निगल लेता है। देखा आपने? पूरे के पूरे हिरण को निगल लेता है, इतना बड़ा होता है अजगर। तो ये है अजागर वृत्ति। तो हमें भी ऐसे अजगर वृत्ति मिलना चाहिए, बस भगवान की भक्ति करते रहो, ऑटोमेटिक वस्तुएं आएगी, इवन खाने पीने के लिए वस्तुएं आएगी। कभी ऐसा दिन हुआ है किसी के जीवन में जो कभी आप भूखा मरे हो? कभी नहीं हुआ ना? कितने साल हो गए? आपकी एज क्या है हर्षित प्रभु?
18 साल कभी हुआ है कि एक आध बार भूखे सो गए हो? नहीं। इनफैक्ट ये होता है कि प्रभु जी पेट भरा है फिर भी डूब रहा है, प्रभु लो लो और थोड़ा ले लो। भगवान की भक्ति में संपर्क में आने का इतना प्रयत्न। अभी सीरियसली तो हम भक्ति कर नहीं रहे हैं, सीरियसली आधा अधूरा हाफ हार्टेड कर रहे हैं, पर फिर भी देखो कितना प्रभाव है। भगवान की भक्ति इतनी शक्तिशाली है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी जुहू में क्लास दे रहे थे और क्लास देने के समय ऑलमोस्ट सब डिवोटी सो रहे थे और एक बाहर से गेस्ट आया था। क्लास के बाद प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद स्वामी जी आपके डिसाइपल दे आर नॉट परफॉर्मिंग अप टू द मार्क। प्रभुपाद बोले क्या हुआ? बोले कि प्रभुपाद आपने क्लास दिया 1 घंटा, 95% टाइम तो सो रहे थे वो। तो प्रभुपाद ने बोला 5% टाइम तो सुना है उन्होंने? बोला हाँ 5% सुना होगा। 5% टाइम सुनने के बाद देखो कितना परिवर्तन हुआ है। धोती कुर्ता पहन के शेविंग करके देखो भक्ति कर रहे हैं भगवान की फुल टाइम। जस्ट इमेजिन अगर और करेंगे 100% करें तो कितना प्रभावशाली होगा। तो भगवान की भक्ति इतनी शक्तिशाली है। तो आपने सुना था फैमिली, एक चोर का परिवार था, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन था, थंब लॉ था, थंब रूल था फैमिली का कि साधुओं के मुख से कभी कुछ सुनना नहीं। उनका रूल था साधुओं के मुख से कभी कुछ सुनना नहीं। तो क्या हुआ, एक बार एक हरी कथा हो रही थी। एक था व्यक्ति, उसको नया नया ट्रेनिंग मिला था, एक बच्चा चोर के परिवार में, और वो चोरी करके आ रहा था वापस। और जैसे ही चोरी करके आ रहा था तो क्या हुआ, हमने सुना हुआ एक कथा, रास्ते में चलते चलते हरी कथा हो रही थी और उसने अपने कान बंद कर लिए, नहीं सुना, हरी कथा नहीं सुनी है, कुछ भी हो जाए, मैजिकल है ये। तो एक जब वहाँ पहुँचा तो पैर में उसको कांटा चुभ गया। तो कांटा निकालने के लिए तो कान से हाथ ना निकालना पड़ा उसको तो उसने क्षणों के लिए, उन्होंने जब सुना भगवान की मधुरिमा सुनी, भगवान का श्रृंगार सुना, कि चैतन्य चरितामृत में आप पढ़ सकते हैं भगवान की मधुरिमा, भगवान की सुंदरता क्या है, भगवान की मधुरता क्या है। द स्वीट वर्ड्स ऑफ कृष्णा, भगवान के मधुर वाक्य, भगवान की बांसुरी की मधुर ध्वनि, और भगवान के जो आभूषण हैं उसका टिंकलिंग साउंड, पायल की आवाज़ और एंकल बेल्स, कुछ गार्लैंड है, उसकी जो आवाज़ है, उसकी ध्वनि, फ्लूट की ध्वनि, और भगवान के स्वयं जब भगवान बोलते हैं उनके वाक्यों की ध्वनि, ये 3 मिलके स्टॉर्म क्रिएट करते हैं लोग के हृदय में, बड़े बड़े स्टॉर्म क्रिएट। इट्स वेरी स्वीट एंड so sweet that nobody can control themselves. The flute of Krishna's sound is so melodious that it enters the ears, and the bird of sweet sound of Krishna's flute, the bird of sweet sound of Krishna's flute enters the ears, then purifies everything. And then it does not go away from there, it makes a nest. यहाँ एक घोंसला बना के भगवान की बांसुरी की ध्वनि यहाँ बैठ जाती है, घोंसला बना के कान के ऊपर, और किसी वस्तु को एंटर नहीं होने देती, मटेरियल साउंड वाइब्रेशन, इट जस्ट फिल्टर्स एवरीथिंग, ऐसे लिखा है। एंड देन लिखा है कि द गोपीज हु आर सर्विंग देयर हस्बैंड्स, द फ्लूट साउंड ऑफ कृष्णा ड्रैग्स गोपीज फ्रॉम देयर हाउस and brings in front of Krishna. And some gopis are milking the cows, they leave that. Some gopis are feeding their kids, they leave that. Some gopis are boiling the milk for cooking, they leave that. Some gopis are serving prasadam to their family members, in-laws, they leave that. That is, just imagine how attractive, how enchanting, how mesmerizing it is to hear the flute sound of Krishna. तो हमें ये सब सुन के इच्छा होती है कि कभी हमारे कान में भगवान की बांसुरी की ध्वनि चली जाए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, गुड न्यूज़ इज, प्रभुपाद जी लिखते हैं दैट हरे कृष्ण महामंत्र इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द फ्लूट साउंड ऑफ कृष्णा। हरे कृष्ण महामंत्र सुनते हैं, इसका मतलब है कि अभी तक हमने अच्छे से भगवान का नाम सुना नहीं है। अगर सुन लिया होता तो फिर हम सब कुछ छोड़ के भगवान की शरण में पहुंच जाते। पर यह सुनना है, इच्छा रखनी है, एक दिन होगा। प्रतिव्रता होनी चाहिए कि अकाम सर काम हुआ मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे हमारे हृदय में बहुत सारी इच्छाएं हो या कोई भी इच्छा नहीं हो, अकाम सर्व काम हो, सारी इच्छाएं हो, एंजॉय करना है बहुत कुछ, मोक्ष काम या फिर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है, मोक्ष काम उदारधि, जो बड़ी बुद्धि वाले हैं, विशाल बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, व्यास विशाल बुद्धि हो, जैसे व्यास देव को विशाल बुद्धि कहा गया उनके प्रणाम मंत्र में। तो जो विशाल बुद्धि वाले होते हैं, वो वाइड इंटेलिजेंस, ग्रेटर इंटेलिजेंस, ऐसे लोग क्या करते हैं, चाहे बहुत सारी इच्छाएं हो या कोई भी इच्छा नहीं हो या फिर मोक्ष की इच्छा हो, क्या करेंगे, तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता से भगवान की भक्ति करेंगे, तीव्रता से, एंथुजियाज्म से और सीरियसली डेडिकेशन से, टाइम पास नहीं, हाफ हार्टेड नहीं, करना है मतलब करना है, अभी फिनिश, बहुत हो चुका टाइम पास, बहुत
बहुत टाइम पास कर लिया हमने। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेन पुरुषम परम, भगवान कृष्ण की सेवा पूजा करते हैं। तो इस तरीके से हमें भक्ति करनी है, प्रहलाद महाराज सिखाते हैं। तो बाकी सब जो है ऑटोमेटिक आएगा आएगा और आएगा। हमारे जीवन में कभी हुआ नहीं है क्या? कभी हमने देखा है किसी कुत्ते को कोई भूखा मर गया? कुत्ता सुना है कभी? न्यूज़ में आया कभी कुत्ता भूख से मर गया? नहीं। इनफैक्ट हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं कुत्ते मर्सिडीज कार में घूमते हैं। देखा आपने? कुत्तों को टी शर्ट और सॉक्स पहनाया जाता है। हम जू बीच में जाते हैं कीर्तन के लिए, कुत्तों को लोग सॉक्स और शूज़ पहनाते हैं। चाहे कि कुत्ते की इच्छा नहीं है मत पहनाओ, ये सब नाटक है मेरे लिए, नौटंक है, फिर भी उसको पहनाते हैं। और फिर कुत्ते के पोस्टर लगे होते हैं, नाम होता है टॉमी मिसिंग सिंस लास्ट 3 मंथ्स, इसके ये सिम्टम्स है, इसके ये सिम्टम्स है, ये फोटो भी लगा होता है। जो भी रिटर्न करेगा उसको 25,000 रुपये इनाम मिलेगा। देखा आप? नहीं देखा? हम जब जूहू बीच कीर्तन के लिए जाते हैं बहुत सारे पोस्टर लगे होते हैं, बिल्ली मिसिंग है, लिम्पिंग ऑन द लेफ्ट लेग, लक्षण होते हैं उसमें लिखा है, ये है, काले कलर की आँखें हैं, ये जो भी लौटाएगा उसको 25,000 रुपये इनाम देगा। इतना फैसिलिटीज़ मिलता है कुत्तों को, आप देखो कभी लाभ। तो जस्ट इमेजिन अगर एक कुत्ता कोई साधारण स्वामी की सेवा में लगता है, सरेंडर करता है, तो इतनी सारी फैसिलिटी मिलती है। बिस्किट्स मिलते हैं, इंपोर्टेड बिस्किट्स मिलते हैं, लोग खर्चा करके इंपोर्टेड बिस्किट्स खिलाते हैं कुत्ते को। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ सूरत में, उसके घर में बहुत सारे अलग अलग पशु हैं और सब इम्पोर्टेड। उसके पास इम्पोर्टेड कुत्ते हैं, उसके पास इम्पोर्टेड तोते हैं, जो बोलते हैं तोते, इम्पोर्टेड बकरियां हैं। बकरियां इम्पोर्टेड। मैंने पूछा प्रभु जी ये जो आप इतना रखते हो उसको खिलाने का पैसा कितना जाता है? बल्कि मैंने कहा 40,000 उसका फूड होता है सब। 40,000 रुपये का बिस्किट, तोते के लिए अलग खाना, अलग टाइप के सनफ्लावर बीज होते हैं, बर्ड्स के लिए बीज होते हैं, कुत्ते के लिए अलग बिस्किट होते हैं, उसमें फिर न्यूट्रिएंट पाउडर डालना पड़ता है, कछुए हैं, सबको मिला के 40,000 रुपये महीने का खर्चा होता है। जस्ट इमेजिन अगर कोई साधारण व्यक्ति, और प्रभुपाद जी इसका उदाहरण देते हैं कि जो एक स्ट्रीट डॉग होता है, जो सड़क का कुत्ता होता है, उसको कुछ भाव नहीं पूछता कोई, पर जो एक पालतू कुत्ता है, क्योंकि स्वामी के साथ रहता है, स्वामी को वफादार है, इसीलिए उसको बहुत सेवा करके अच्छे से रखा जाता है। तो ये हम अगर भगवान का कुत्ता बन जाएं तो क्या होगा? देखिए, सरेंडर करें तो सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा ऑटोमेटिक। सब कुछ हम सोचते हैं कि ये होगा, कमाने का क्या है, खाने पीने का क्या, सब कुछ आएगा ऑटोमेटिक। हमारे जीवन में कभी हुआ नहीं है कि ऐसे कभी भूखा मरे। भगवान के भक्त नहीं हो जो भगवान को नहीं मानते, भगवान के द्वेष करते हैं, नास्तिक, उनको भी भगवान खाना दे रहे हैं, हमें क्यों नहीं देंगे? अवश्य देंगे। मेरा एक अनुभव है, कुछ दिन पहले मैं शेयर कर रहा था। जब मैं ज्वाइन कर रहा था तो मेरे भाई ने मुझे कहा कि ज्वाइन मत करो इस्कॉन, कुछ काम, जीवन निर्वाह के लिए कुछ तो कमाना पड़ेगा, कुछ पैसे निर्वाह करना पड़ेगा। और वो बोला कि देखो, कुछ दिन पहले एक न्यूज़ में आया था आर्टिकल कि एक साधु था, रेलवे स्टेशन से बाहर पड़ा था ऐसे ही सो के, और उसको खाना नहीं मिला, दुबू के कारण वो मर गया। बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और भारतवर्ष में। तो मैंने बोला ठीक है चलो देखते हैं। फिर कई वर्षों के बाद, अभी कुछ दिनों पहले मैं एक कुछ कार्यों से परिवारजन, कई सारे परिवारजन थे, लगभग 15-17 मेंबर्स थे, फैमिली मेंबर्स अलग अलग। तो कई कुछ कारण से साथ में मिले थे एक जगह गुजरात में, और फिर सब जो भी कार्य था वो हो गया। और उसके फिर मेरे भाई ने कहा कि चलो हम सबको भी रेस्टोरेंट में लेके चलेंगे, लंच का टाइम होगा, सब भूखे होंगे। तो हम गए रेस्टोरेंट में, मुझे बोला कि आप भी चलो। मैं बोला ठीक है चलता हूँ, तो मैं खाऊँगा नहीं, पर चर्चा करूँगा सबसे। तो 17 प्लेट्स ऑर्डर की, सबको 17 प्लेट्स सब फैमिली मेम्बर्स को ऑर्डर की और सर्व कर दिया। और उसके बाद मैं सोच रहा किसको प्रचार करूँ, कोई मिले उनको प्रचार करूँ बैठ के। तो एक व्यक्ति मुझे मिला, मेरी और काउंसलिंग देख रहा था। मैंने उसको हरे कृष्णा बोला, तो उसने बोला कि आइए महाराज बैठिए। चेयर पे बुलाया, हम चर्चा कर रहे थे। चर्चा करते करते फिर उनको बताया, उन्होंने पूछा कि मतलब ऐसा कोई स्थान बताए जहाँ एकदम शांति हो, स्पेशली नेटवर्क नहीं आए, मोबाइल का नेटवर्क। और उनकी टेबल पे 3 फ़ोन पड़े हुए थे। तो बोले कि ये एक पैसा लेने वालों का फ़ोन अलग, इसमें नंबर आता है, पैसा देने वालों का पेमेंट का इसमें दूसरा नंबर आता है, और पर्सनल नंबर अलग है। बोला कि ये सब से छुटकारा पाना है, 3 फ़ोन। तो तभी रिंग बजा, उसका चौथा फ़ोन जेब में था, वहाँ रिंग बजा। तो बोला कि महाराज ऐसे कोई स्थान बताइए जहाँ एकदम नेटवर्क भी नहीं है, सब शांति हो, भगवान के कनेक्शन में है। तो मैंने बताया आप यहाँ है, जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, वृंदावन जा सकते हैं, ऋषिकेश जा सकते हैं, मायापुर जा सकते हैं, द्वारका जा सकते हैं। यानी ये सब डिस्कशन हो गया। फिर और भगवान के भक्त नरसिंह मेहता के बारे में चर्चा हुई। सब होने के बाद मेरा नंबर मांगा उन्होंने, बोला कि नंबर दीजिए, कभी कुछ भी सेवा हो तो मुझे बताइएगा। मैं बोला ठीक है। सब होने के बाद वो तो चले गए, और जो मेरे भाई ने वेटर को बुलाया कैश पेमेंट के लिए कि कैशियर को कितना हुआ पेमेंट।
बोले कि आपके बाजू में जो बैठे हुए थे ना, वो सबको 17 लोग का पेमेंट करके निकल गए। तो ये होता है, और उसमें से मैंने तो कुछ भी खाया नहीं था। इमेजिन भगवान कैसे अरेंज करता है। फिर और फैमिली रिलेटिव्स ने पूछा, आके पूछा कि कितना कितना पे करना है, मतलब सब भगवान ने भेज दिया, हो गया। द पॉइंट इज, अगर हम भगवान के शरण में जाने का प्रयत्न करते हैं तो भगवान सब कुछ अरेंज करेंगे, कभी हमें भूखा नहीं रखेंगे। हमारे फैमिली रिलेटिव्स क्या, इमीडिएट रिलेटिव्स क्या बात करो, डिस्टेंट रिलेटिव्स, उनका भी ख्याल रखेंगे। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त बनता है तो 21 पीढ़ियां तर जाती है। उसके बाद श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, अमृत प्रवाह वाणी में कहते हैं कि अगर कोई परिवार में कोई शुद्ध भक्त जन्म लेता है तो क्या होता है, 14 पीढ़ियां तर जाती है। कोई बोलेगा मैं तो अभी शुद्ध भक्त नहीं हूं, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि अगर कोई परिवार में कोई मध्यम अधिकारी भी भक्त लेता है तो क्या होता है, उसकी 51 पीढ़ियां तर जाती है। सॉरी नहीं, मैं एग्जैक्टली दिखाता हूं। Writings of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur in Amrit Vani, Nectar of Instruction for Immortality, 16th instruction है। प्रश्न ये था कि is the whole family benefited if a devotee takes birth in it? श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, आचार्य केशरी कहते हैं उनको, आचार्य केशरी, केशरी अर्थात सिंह, लायन, लायन गुरु कहते हैं, आचार्य केशरी। वो कहते हैं 100 generations forward and 100 generations backward of a family in which a Mahabhagavata appears are automatically delivered। महाभागवत अगर जन्म लेता है तो उनके परिवार में 100 पीढ़ी आगे और 100 पीढ़ी पीछे उनका उद्धार हो जाता है परिवार। और कोई कहेगा प्रभु जी बट मैं तो महाभागवत नहीं हूं। इसके बाद कहते हैं कि 14 generations forward and 14 generations backward of a family in which a मध्यम अधिकारी appears are automatically delivered। मध्यम अधिकारी भी है तो उसके परिवार में भी 14 आगे और पीछे परिवार तर जाते हैं। कोई बोलेगा प्रभु जी मैं तो वहां भी नहीं हूं, मैं तो अभी कनिष्ठ अभी चालू किया है एक माला जप करना, कनिष्ठ अधिकारी। कहते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 3 generations forward and 3 generations backward in of a family in which a कनिष्ठ अधिकारी appears are also delivered। तो हम कनिष्ठ भी हैं तो हमारे आसपास भी 3 पीढ़ियां तर जाएगी, तो हमारी चिंता क्या है। तो और शास्त्र में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मंत्र तंत्र विशारद ब्राह्मण भी है, विप्र है, पर अगर भगवान का भक्त नहीं है तो अपने आप को भी तार नहीं पाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई व्यक्ति भले ही चंडाल परिवार में भक्त जन्म लिया है, पर अगर भगवान का भक्त है, चंडाल परिवार कुत्ते खाने वालों के जन्म परिवार में जन्म लिया है, पर अगर भगवान का भक्त है तो 100 पीढ़ियों को तार सकता है भगवान के भक्त बनने से। ये लाभ होता है। तो हमें सोचना चाहिए हम क्या दे पाएंगे समाज को, क्या और अल्टीमेट प्लान शुड बी कि टाइम आ गया है अभी, भगवान की शरण ले, रिवोल्यूशन इज अंडर वे, एक क्रांति हो रही है, उसमें भाग ले और जितना हो सके टाइम दे। टाइम सब कुछ आएगा, ऑटोमेटिक आएगा, सब कुछ फैमिली रिलेटिव्स माता पिता सबका ध्यान रखेंगे भगवान। एक नॉर्मल कंपनी आप देखो, नॉर्मल कंपनी में होती है वो सबके लिए आपको सैलरी तो देगी आप जॉब करोगे तो, पर कुछ कंपनी में फैमिली क्या होता है उसको वेकेशन पर्क्स ये सब भी होता है। अगर आप वेकेशन में जा रहे हो तो उसके लिए भी आपको टिकट करके देंगे, कुछ एक्स्ट्रा पैसा देंगे, करेक्ट ऐसा होता है। तो एक मेरे भाई ने मुझे कॉल किया था कि आधार कार्ड भेजो। बोला क्या हुआ? बोला कि हमें वो वेकेशन का पर्क मिलता है, सारे फैमिली मेम्बर्स के लिए मिलता है। तो मैं जब सोच रहा था कि एक साधारण व्यक्ति जो छोटी सी कंपनी का मालिक है वो अपने सारे सेवक और एम्प्लॉय का ध्यान रखता है, उसको तो संभालता है, उसको मेंटेन करता है, उनके परिवार के लिए भी अरेंज करता है सब कुछ। तो क्या भगवान जो सारी पृथ्वी के मालिक है, सारे ब्रह्मांड के मालिक है, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते, सब कुछ क्रिएट करते हैं, सब कुछ मेंटेन करते हैं, क्या वो भगवान अगर हम उनकी शरण लें तो हमें संभाल नहीं पाएंगे? हमारे परिवार को नहीं। विश्वास पालन, ये हमें एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे और मात्र कृष्ण रक्षा करेंगे, और कोई रक्षा नहीं कर सकता, और किसी की हालत भी नहीं है, कोई किसी को उसकी मजाल भी नहीं है कि रक्षा करे, प्रयत्न भी करे। तो हमें बहुत बहुत दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य है। नहीं तो कुछ भी करें, हमारी कितनी भी इच्छा हो, कितना एंटी एजिंग ट्राई करें, पर फिर मृत्यु तो आनी और आनी ही है।
कोई नहीं बच सकता। तो उसमें क्या करना चाहिए, जितना भी समय मिला है, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। लोग कितनी पीड़ा में हैं, कितनी पीड़ा में हैं, हर एक व्यक्ति कोई ना कोई पीड़ा में है। आप किसी को भी पूछ लो, बोले आप पूछिए कैसे हो, बोले ठीक हूँ, हाउ आर यू, वेरी गुड, थोड़ा 5 मिनट बैठो, हम थोड़ा चर्चा करेंगे, 5 मिनट उसको रिलेशन बनाओ, फिर पूछो, टेल मी ऑनेस्टली हाउ आर यू, ऑनेस्टली पूछो कैसे हो। मैं एक बार एक जगह ट्रैवल कर रहा था, एक बेंच पे एक व्यक्ति मिला, मैंने उसको बात की तो वो बोला कि पूछा, चर्चा की, साधारण परिचय हुआ, उसके बाद पूछा, मैंने बोला कि मैं कभी ना कभी, वो एक्चुअली ये था केबिन क्रू था, केबिन क्रू जो एयरप्लेन्स में जो होता है ना, चाय सर्व करते हैं, संभालते हैं, तो वो था। तो मैंने उसको पूछा, आई ऑलवेज वांटेड टू मीट केबिन क्रू, इट्स वेरी नाइस, आई ऑलवेज वांटेड टू टॉक टू, आप लोगों से मिलने की इच्छा थी। बोला हाँ पूछिए पूछिए, एकदम गर्व से बोल रहा था, पूछिए प्रश्न पूछिए। बोला टेल मी ऑनेस्टली आर यू हैप्पी, सही से बताओ, प्रामाणिकता से बताओ, क्या खुश हो जीवन में। बोला कि मैं नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ, मेरे मित्र ही नहीं है। हम जब फ्लाइट लेते हैं तो 4-5 घंटे के लिए हमारे मित्र होते हैं, बस उसके बाद निकल गए। फिर उसने, मैं जब भगवान रामचंद्र की लीला बता रहा था कि देखो एक स्क्विरल है, भगवान की सेवा की, और फिर भगवान ने हाथ उसके ऊपर रखा ऐसे, तो लाइंस पड़ गए स्क्विरल के ऊपर, गिलहरी के ऊपर। बोला हाँ याद आया, आई ऑल्सो हैव फ्रेंड्स। फिर वीडियो निकाला, 4-5 गिलहरी है जो उसकी फ्रेंड्स है। बोला जब भी मैं जाता हूँ बॉस्टन, तब मेरे गार्डन में एक गिलहरी आती है और उसको मैं खाना खिलाता हूँ, नट्स खिलाता हूँ, ये मेरी मित्र है, और कोई फैमिली नहीं है। इतने ही परेशान है लोग, इतने ही परेशान हैं हर जगह। तो हमारे पास ये सोल्यूशन है, और टेम्पररी नहीं, परमानेंट सोल्यूशन मिल सकता है। भगवान की भक्ति करें, भगवान की शरण लें, तो परमानेंट सोल्यूशन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हमें मुक्ति मिल सकती है। कैसे? भगवान के भक्तों के गाइडेंस में सेवा करके। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान के भक्तों का संग बहुत बहुत दुर्लभ है। इसीलिए कहते हैं फर्स्ट कैंटो में आता है, ये तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। कि भगवान कहते हैं कि अगर मैं जीव को, बद्ध जीव को कुछ देना चाहता हूँ, तो बेस्ट थिंग आई कैन गिव टू द बाउंड लिविंग एंटिटी, द कंडीशन लिविंग एंटिटी। बद्ध जीव को मैं अगर बेस्ट वस्तु देना चाहता हूँ, भगवान कहते हैं, तो क्या है वो? तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम, न स्वर्ग नहीं दूंगा मैं अगर कुछ देना है तो, न स्वर्गम न पुनर्भवम, और अपुनर्भव, मोक्ष भी नहीं दूंगा। तो क्या दूंगा? भगवान कहते हैं भगवत संगी संगस्य, जो भगवान के संग करते हैं, ऐसे भगवत संगियों का संग दूंगा। कितना संग? 4-5 वर्षों के लिए। तुलयाम लवेनापि, तुला अर्थात क्या होता है? कंपैरिजन। तुलयाम लवेनापि, लव अर्थात 1/14 सेकेंड, 1 सेकेंड का आप 14वां टुकड़ा कर दो, 1/14 सेकेंड, उसको कहते हैं टाइम यूनिट को कहते हैं लव। भगवान कहते हैं कि मैं अगर किसी को कुछ बद्ध जीव को देना चाहता हूं, तो स्वर्ग भी नहीं दूंगा और मोक्ष भी नहीं दूंगा। तो क्या दूंगा मैं? भगवान के भक्तों का संग दूंगा। और कितना समय के लिए? एक लव के लिए। लव मातृ साधु संगे सर्वसिद्धि है, सर्वशास्त्र कई। साधु संग सर्वशास्त्र कई, लव मात्र साधु संगे सर्वसिद्धि है। सारे शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान के भक्तों का जो संग होता है, लव मात्र संग, उससे सर्वसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो समझना है कि हमारा इतना बड़ा सौभाग्य है कि कहाँ कहाँ घूम रहे थे, कहाँ गटर में भटक रहे थे हम, वहाँ से प्रभुपाद जी के संग में आए हैं, प्राप्त हो चुका है, सोल्यूशन है, रोड क्लियर है हमारे सामने। अब बस एक डिसीजन लेना है कि दैट्स इट, कृष्णा, जो हो गया हो गया। इतने सारे जन्म मैंने कहीं दे दिए, किसी बॉस को दे दिए, किसी पत्नी को दे दिए, किसी पति को दे दिए, किसी मास्टर को दे दिए, किसी कुत्ते को दे दिए मैंने। एक जन्म भगवान, हे माधव, मैं आपकी सेवा में लगाना चाहता हूँ, मेरा अटैचमेंट है, मेरी आसक्ति है, पर आप मुझे फोर्सफुली निकालिए यहाँ से। ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। लगा दो भगवान की सेवा, फिर देखो क्या होता है, क्या मिरेकल्स होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आई गिव अप वन फैमिली, आई गिव फ्यू चिल्ड्रन एंड कृष्णा हैज गिवन मी सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन नाउ। मैं एक परिवार छोड़ के आया और मुझे भगवान ने इतना बड़ा परिवार दिया। इतने प्रेम से भगवान प्रभुपाद जी की सेवा करते हैं उनके शिष्य। तो ये है हमारे जीवन में मैजिक मैजिक मैजिक। श्रीधर स्वामी, द ओरिजिनल कमेंटेटर ऑन श्रीमद् भागवतम, वो संन्यास लेना चाहते थे, पर सोचे थे कि उनकी जो पत्नी है, उनको एक पुत्र होगा, उसके बाद तुरंत संन्यास लेंगे, कंडीशन था ये, शर्त हो गई। और जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ, सोचा अभी मैं संन्यास ले लूँगा, पर क्या हुआ, पुत्र के जन्म के साथ उनके धर्मपत्नी का निधन हो गया। अब सोचा अभी क्या करूँ मैं, फंस गया, पुत्र को संभालेगा कौन, नवजात शिशु है। पर तुरंत भगवान के इंस्पिरेशन से एक वहाँ छिपकली थी, छिपकली का अंडा था, और अंडा टूटा और अंडे में से छोटी सी एक बच्ची, छोटी छिपकली निकली और घूम रही थी छोटी सी छिपकली बच्चा। और पास में एक कीड़ा था, छिपकली ने जाके तुरंत अपने जीवा ऐसे एलोंगेट करके, लंबा करके एक कीड़े को पकड़ लिया, खा लिया। तो श्रीधर स्वामी को
भगवान हृदय में प्रेरणा दी कि इस छिपकली ने अभी अभी जन्म लिया है, इसको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है, इसको कौन संभालेगा, कौन फूड दे रहा है, कौन खाना दे रहा है, भगवान संभाल रहे हैं। जो भी व्यक्ति अपने जन्म के साथ, हर एक व्यक्ति अपना प्रारब्ध कर्म लेके आया है और कर्मों के अनुसार उसको हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस मिलेगा। तो हमारे आसपास जितने परिवारजन हैं उनको भी सब कुछ ऑटोमेटिक मिलेगा। तो ये सोचकर श्रीधर स्वामी ने तुरंत संन्यास ले लिया और संन्यास लेके फिर भगवान का प्रचार करने लगे। और कुछ समय के बाद ही एक परिवार आया भगवान के मंदिर में और वो भगवान को प्रार्थना करते कि भगवान प्लीज़ हमें कोई पुत्र नहीं है, प्लीज़ पुत्र की प्राप्ति कराइए। तो तुरंत इस नवजात शिशु के रोने की आवाज़ आई ध्वनि आई और उन्होंने सोचा देखो भगवान ने हमें पुत्र भेज दिया है। उनको लेके फिर उनको अडॉप्ट करके बहुत प्रेम से उनका लालन पालन किया। तो हमारे जीवन में बहुत टाइम हो गया, टाइम ज़्यादा नहीं है और जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा, जस्ट इमेजिन कैसी हो रही है कलयुग की परिस्थिति, लोग कितने बेशर्म हो रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा, समय आएगा, हरि नाम करना संभव नहीं होगा। ठीक है, लॉ, गवर्नमेंट लॉ सपोर्ट करेंगे, बाहर वातावरण ऐसा नहीं होगा। अभी भी हम कीर्तन करने के लिए जाते हैं तो सोचना पड़े कहाँ देखें, हम इतने निर्लज हो चुके हैं लोग। हवा में देखे, आकाश में देखे, कहाँ देखें, जहाँ देखे वहाँ ऑब्सिन एटमॉस्फेयर है। ऐसे वातावरण आ जाएंगे कुछ समय के बाद कि लोग इतने और निर्लज हो जाएंगे, हरि नाम के लिए नहीं जा पाएंगे हम बाहर। ये परिस्थिति आई तो जितना अधिक तीव्रता से हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए और शुद्ध स्तर पे पहुंचना चाहिए। भले ही जन्म लेना पड़ेगा पर शुद्ध होकर आए प्रचार के लिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि देयर इज ओनली वन सोल्यूशन टू लस्ट। एक भक्त ने बोला प्रभुपाद देयर इज सो मच माया इन द टेम्पल। प्रभुपाद ने बोला कि मुझे ऐसा स्थान बताओ जहाँ माया नहीं है, मैं वहाँ चला जाऊँगा। पूरे जगत में ऐसा स्थान बताओ जहाँ माया नहीं है, मैं वहाँ चला जाऊँगा। प्रभु बोले हर जगह माया है। तो ओनली सोल्यूशन, एकमात्र सोल्यूशन क्या है? बिकम स्पिरिचुअली एडवांस्ड, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करो, यही एकमात्र सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं है। शुद्ध बन जाए हम, माया सामने है फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़े। कैचिंग द फिश बट नॉट गेटिंग वेट। ये हमें भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा होगी, भगवान के भक्तों की कृपा होगी तो ये संभव होगा एक दिन। तो इसीलिए हमें प्रयत्न करना है, तीव्रता से प्रयत्न करना है, आधा अधूरा नहीं है, अभी सीरियस बनना है। जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सीरियस बनना है। और जब हम सीरियस बन जाए तो किसी भी परिस्थिति में फिर हम आनंद प्राप्त करेंगे। किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो जाए हम आनंद प्राप्त करेंगे। देखो कितना अच्छा भगवान, ये कितनी अद्भुत आग है, जब देखने का आनंद लो। प्रोबेबली आपके जीवन में और कभी ऐसा सीन देखने को नहीं मिलेगा जो सीन देखने को मिल रहा है, आनंद लो उससे। मॉरल प्लेटफॉर्म है पर हम आध्यात्मिक जीवन में देख सकते हैं। लोगों के घर में जब बाढ़ आ जाती है लोग परेशान हो जाते हैं। वृंदावन में जब बाढ़ आई थी लोग इतने आनंद में थे, लोग नाच रहे थे, कूद रहे थे, घर में पानी घुस चुका है पर लोग खुश रहे, इतने नाच रहे, बोले कि यमुना मैया हमारे घर में आ गई है, घर आके दर्शन दे रही है यमुना मैया। कितना सौभाग्य है। तो इट वॉज वेरी टचिंग वीडियो। मैं इसको हम कनेक्ट करके एक वीडियो दिखाएंगे, 30 सेकंड्स का एक वीडियो है। लोग गलियों में आरती कर रहे हैं आ गया। तो भगवान के भक्तों का संग से कुछ भी हो सकता है। जैसे कि नारद मुनि ट्रैवल करते हैं और कितने सारे लोगों को उन्होंने भगवान की भक्ति प्रदान की है। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज और कुछ उदाहरण, नारद, मृगारी और यस हाँ, एक राजा थे जिनका पुत्र मर गया था। कौन थे वो? पुत्र का नाम क्या था? चित्रकेतु महाराज। उनका पुत्र का नाम क्या था? हर्ष शोक। जो हर्ष भी देगा और शोक भी देगा एक सांप भी था जो नारद मुनि का शिष्य था। नारद मुनि के सब अलग अलग प्रकार के शिष्य हैं। तो भगवान के भक्तों का संग इतना शक्तिशाली होता है, बस कुछ क्षणों के लिए भगवान की भक्तों के संग मिल जाए बहुत। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दैट इज व्हाई वी ओपन दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट। अभी हम लोगों को जाके संग देना है बाहर, हमें तो मिल गया और लोगों को बाहर जाके संग देना है, प्रचार करना है, प्रभुपाद जी की पुस्तकें देनी है, कार्ड देना है, प्रसाद देना है, लोगों को इन्वाइट करना है, हरि नाम सुनाना है, बाहर जाके संग देना है, तब जाके कुछ कमीशन मिलेगा, भक्ति कृपा। तो देखिए यहाँ देख सकते हैं हम कि जमुना मैया जब रोड पे आ गई है, लोग परेशान नहीं है, इतने खुश है, इतने आनंद है कि जमुना मैया आरती कर रहे हैं लोग जस्ट इमेजिन घर किया आप।
कितने आनंद में है लोग। और एक है, एक मिनट देखो कितने आनंद में है लोग। आ रहा है हमारे मदन मोहन जी, ये हमारी यमुना मैया, ये हमारा पुराना वृंदावन। जय जय श्री राधे। देखिए यमुना जी जो है अपने मार्ग पर बैठी है और वृंदावन जो है फिर से अपने मार्ग पर पुनः वापस आ चुका है। इतनी बड़ी समस्या उसमें भी हम आनंद में है। दूसरी तरह इतना कुछ फैसिलिटी है फिर भी लोग आनंद में नहीं है इतनी मेहनत करने के बाद। तो हमें ये स्तर तक पहुंचना है। ब्रजवासी जो भगवान की भक्ति की शरण, एक शरणागत है, हर एक क्षण उनका एग्जिस्टेंस, एवरी सेकंड ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, एवरी मोमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस इज फॉर प्लीजिंग कृष्णा। हमें यहाँ तक पहुँचना है और ये मनुष्य जीवन मिला है उसके लिए। लेट अस यूज दिस वेरी वेरी इंटेंसली, वेरी स्ट्रांगली, और तब जाके कुछ मतलब होगा मनुष्य जीवन प्राप्त करने का। नहीं तो हरि हरि बिफले जन्म गुआइनु, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना बजिया, जानू या सुनिया विश्व खाइनु। मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ पर राधा कृष्ण का भजन नहीं किया तो क्या होगा? जानबूझकर विष खाया हमने, जहर खाया, इसके समान होगा। तो भक्ति तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए, भगवान के बस लग जाना चाहिए। कृष्ण व्हाटएवर I throw myself onto your lotus feet, you take care of me। प्रभुपाद जी कहते हैं 4 नियम का पालन है, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स एंड नो इंटॉक्सिकेशन। चारों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, डिटेल कर सकते हैं। कैसे? नो मीट ईटिंग, जरा आप खाना है तो प्रसाद खाओ, और नो इंटॉक्सिकेशन, नशा करना है, नशा नहीं करना है पर हरि नाम का नशा करो। एकदम महाप्रभु इतने पागल हो जाते थे नशा करके, दरवाजे बंद होते फिर भी महाप्रभु जाते थे रास्ते में और कहीं गिर जाते थे, गौशाला में गिर जाते थे। कभी कभी महाप्रभु जाते थे, एक बार स्वर्ग द्वार के पास वहाँ स्नान कर रहे थे, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन, उसके बाद स्वर्ग स्नान कर रहे थे समुद्र में, पुरी में, और स्नान करते करते भक्तों की नज़र इधर उधर हुई और महाप्रभु ने देखा कि अच्छा यमुना है, ये गार्डन है, ये तो वृंदावन है, ये यमुना है। महाप्रभु कूद गए अंदर और बस बेहोश मूर्छित हो गए। फिर जा रहे हैं तरंगों से, ऐसे ऐसे हो रहे हैं। भक्तों ने कहा महाप्रभु मिल नहीं रहे हैं, गंभीरा में देखा नहीं है, जगन्नाथपुरी मंदिर में नहीं है, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में नहीं है, सब जगह देखा, कहीं महाप्रभु नहीं मिल रहा है। कुछ को लगा कि महाप्रभु अंतर्धान हो गए, चले गए भगवत धाम वापस, सब चिंता में थे। फिर भी स्वरूप दामोदर ने एक टीम भेजी अलग अलग स्थानों पर, रात को भगवान को ढूंढ रहे थे। वहाँ से 19 किलोमीटर दूर कोणार्क मंदिर है, वहाँ एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था, उसको लगा कि आज बहुत बड़ी मछली जाल में आई है। महाप्रभु को पकड़ लिया, मछली में लेके आया और जैसे जाल से निकालने का प्रयत्न कर रहा था, पता चला रहे थे तो डेड बॉडी है। जैसे डेड बॉडी, भूत आ गया, जैसे ही डेड बॉडी को निकालने का, महाप्रभु को निकालने का प्रयत्न किया, उसको लगा कि डेड बॉडी है। जैसे स्पर्श किया वो भी बोलना चालू गया, हरी 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 हरे कृष्ण भगवान का नाम बोलना चालू, बंद नहीं कर पा रहे। तो सब आके पागल हो गया लोगों को। तो महाप्रभु की टीम, रामन राय की टीम गई और वहाँ जाके पूछा कि यहाँ कोई आए हैं, कोई महानुभाव, कोई संत आए हैं? तो बोला कि हमने तो देखा नहीं, पर एक व्यक्ति मिला रास्ते में ऐसे पागल की तरह जा रहा था। बोला कि आपने कुछ देखा है? बोला कि नहीं, महानुभाव तो नहीं, उसका जो स्वभाव था, उसके बोल बाल से होश में नहीं था, समझ में आ गया कि महाप्रभु कृपा मिली है इसको, पागल की तरह लक्षण थे। बोला कि नहीं, कल रात को मैं मछली पकड़ रहा था, एक डेड बॉडी आ गई, ये कॉप्स आ गया मेरे नेट में, और जब निकालने का ट्राई कर रहा था, वो भूत इतना खतरनाक था कि मैं टच किया और तुरंत मेरे अंदर भी भूत लग गया, अंदर आ गया और मैं पागल हो गया। और जितना मैं अधिक निकालने का ट्राई कर रहा था, उतना ही भूत का प्रभाव और अधिक बढ़ रहा था। अलग प्रकार का भूत है इंसेसेंट, और जिसने भी इसको टच किया उसको भी भूत लग गया, महाप्रभु की पागलपन। तो फिर रामन राय ने एक चाटा लगाया उसको, चुप, ये भगवान स्वयं है और तुम इतने भाग्यशाली हो कि भगवान आपके स्वयं आपके टच में आए हैं, आपने भगवान को बचा लिया है समुद्र से। फिर महाप्रभु को लेके आए, महाप्रभु होश में नहीं आ रहे थे, तो इतने लंबे समय तक हरि नाम किया, फिर महाप्रभु होश में आए। महाप्रभु, अरे क्या हुआ? मैं वृंदावन गया था, यमुना में तैरा था, आपने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। और वही भाव लोगों को हम ट्रांसफ़र करें। ये मूवमेंट स्पेशल है, इतने परेशान है उनको लोगों को आनंद देना है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, ताई गौर प्रेमानंदे।